پیدائش سے لے کر 15 سال تک کا وقت جو ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے. یہ ہیرے کو سونے کو تراشنے کا وقت ہے. اگر ہم ابھی صحیح تراشیں گے نہ ہو جیسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی مسئلہ سکھانا تو 1000 رکعت نوافل نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور کوئی ہمیں گفٹ دے تو اور کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق آپ مجھے سیڑھیوں سے اترنے کی دعا بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا مسلمین. ساحل آپ مجھے مسجد میں آنے کی دعا بتائیے. اللہم وافتح لی ابواب رحمتک. اور سیڑھیوں سے نیچے سیڑھیوں کے سمے سیڑھیاں چڑھتے سمے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ابراہیم آپ سورہ فیل کی تلاوت کیجیے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلال وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سہیل سونے کے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت وحیا. اور کوئی ہمیں گفٹ دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. اور کچھ اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ. ویری گڈ. شیرون کھانے کی دعا بسم اللہ. ماشاء اللہ. مہک آپ ہمیں غسل کی سنتیں بتائیے. نمبر 1 پاک ہونے کی نیت کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. نمبر 3 استنجا کرنا. نمبر 4 بدن پر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا. نمبر 5 وضو کرنا. نمبر 6 سر بالوں تک سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا. نمبر 7 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا. نمبر 8 پہلے سر پر پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا. نمبر 9 جہاں پانی نہ پہنچاؤ وہاں ہاتھ سے مل کر پانی پہنچانا. ویری گڈ. فرح آپ ہمیں وضو کے بعد کی دعا بتائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سہانا بیت الخلا جانے کے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تقدیس آپ ہمیں سو کر اٹھنے کی دعا بتائیے. اللہم انی اعوذ بک الحمدللہ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. سونے کی دعا بتائیے. اللہم بسمک اموت واحیا. ماشاء اللہ. کھانے کی دعا ہاں. جزاک اللہ. اللہ ہمیں ان دعاؤں کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا توفیق دے. میں اب دعوت دیتا ہوں جناب غفار شیخ کو کہ وہ ان بچوں کو پرائز دے. اچھا تھا.
जज़ाकल्लाहु खैर। नहीं वहाँ मिस्टेक कर इनके साथ जाओ अच्छा बोलो जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे से जाओ सब बच्चों को तैयार दे दीजिए। जज़ाकल्लाह जनाब गफ्फार शेख। अब हम 5 मिनट की रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम का फिर से शुरू करते हैं। अब हम सुनेंगे अकायद और मसाइल। मैं दावत देता हूँ फयाज़ बिलेरी को कि वो हमें आकर अकायद और मसाइल सुनाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। मोहतरम चीफ गेस्ट, मस्जिद के कमेटी मेंबर्स, मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, मेरे माओ, भाइयों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मौजू है अकायद और मसाइल पर। ए ईमान वालों, जब तू नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोनों समेत धो लो, अपने सर का मसा करो और अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धो लो। मसाइल दीन की वह बातें जिनमें सही अमल का तरीका या उसका सही और गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं। नमाज एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, अगर इल्म का एक मजमून सीख लो, चाहे उस वक्त उस पर अमल हो या ना हो, जैसे पानी के होते हुए तयम्मुम की मसाइल सिखाना, तो 1000 रकात नवाफिल नमाज पढ़ने से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और वक्त पर नमाज पढ़े, रुकू भी अच्छी तरह करे और खुशू से पढ़े, तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर दे। और जो ऐसे ना करे, अल्लाह ताला पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, चाहे मग़फ़िरत करे चाहे अज़ाब दे। इल्म अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसी के ज़रिए इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता मालूम होता है और ज़िंदगी के हर शोबे में सही और गलत की तमीज़ होती है। और इसी इल्म के ज़रिए हमें हलाल और हराम की पहचान होती है, इसलिए हर मुसलमान पर इसका सीखना ज़रूरी है। वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के 4 फ़राइज़ है। पहला, पेशानी के बालों से लेकर टुड्डी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे को धोना। दूसरा, दोनों हाथों को टखनों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। नवाक़िज़ वज़ू 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है, जिसे नवाक़िज़ वज़ू कहते हैं। पहला, पेशाब पकाना, यानी उन दोनों रास्तों से किसी एक चीज़ का निकलना। दूसरा, री यानी हवा का पीछे से निकलना। तीसरा, बदन के किसी हिस्से से खून या पीप कर निकल कर बह जाना। चौथा, मुंह भर कर कह करना। पांचवा, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। छठा, बीमारी या किसी और हालत में बेहोश होकर गिर जाना, पागल हो जाना और नमाज की वजह क्या मार कर हंसना। गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। पहला, पूरे दोनों हाथों को कोनों समेत धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार भी जगह सूखी ना रहे। नमाज के अरकान, नमाज के अंदर, नमाज के बाहर 6 अरकान है। पहला, 7 अरकान है। पहला, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ रुक कर पढ़ना, नियत करना। नमाज के अंदर 7 शराइत हैं, 6 शराइत हैं। पहला, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना, सीधा खड़ा होना, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का पढ़ना, रुकू करना, दोनों सजदे करना, कायदा आखिरात में तशहुद की मिकदार बैठना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुसलमान को अपने अकायद और मसाइल का इल्म होना चाहिए। अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी मेहमान मिनाज बानो साहिबा को कि वो अपनी तकरीर पेश करें। आपका मौजू है इस्तिकबाल रमज़ान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ के आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स और प्यारे बच्चों और यहाँ पे मौजूद तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे पहले मुझे बताया गया था कि पेरेंटिंग पर बात करना है, तो अभी मालूम पड़ा कि रमज़ान पे बात करना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना जल्द ही जो है हमारे करीब आने वाली हम रमज़ान के महीने को दाखिल होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो है हमको बखूबी करनी है। जैसे एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें हमारे बाकी 11 महीनों के लिए जो तैयारी हमको करनी है, जो इरादे करनी है, अगर हम इस महीने से शुरुआत करते हैं, जैसे सहाबा कराम के बारे में हमको मालूम पड़ता है कि सहाबा कराम जो है इस महीने का कसरत से जो है इंतज़ार किया करते थे और ख़ास तौर पर दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारे लिए जो है आने वाला रमज़ान जो है नसीब कर। तो हमें भी जो है अल्लाह ताला ये महीना नसीब करे। हम भी जो है अब कुछ दिन जो बचे हैं, हमको पता नहीं है कि हम रमज़ान तक बचेंगे या नहीं, तो एक मौका है, एक तो हमारी मग़फ़िरत करवाने की और दूसरा जो है हमारे अखलाक को और संवारने की, ऐसे चीज़ों को हमारे अंदर डालने की जिसमें जो है हमको नज़र आती है कि कोताही है या जिसमें सुधार आनी चाहिए। ये एक बेहतरीन मौका है क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा है कि जिसमें शैतान को जो है कैद किया जाता है। तो जो बचता है वो अपना नफ्स है, जो हमारे अंदर है, उसको अगर हम लोग कंट्रोल करना सीखे, ये बेहतरीन मौका है कि हम रमज़ान में जो है अपने नफ्स को जो है कंट्रोल करना जो है सीख जाए। तो अब मैं जो है, क्योंकि यहाँ पर तमाम वालिदैन मौजूद हैं, इस मौके पर जो है अगर हम वालिदैन से बात नहीं करेंगे तो जो है फिर ये बात रखना जो है शायद उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु। ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को नहीं बल्कि मोमिनों को एड्रेस करके बता रहा है कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी माल और औलाद, ये जो दुनिया की ये दो चीज़ें जो है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन यही दो चीज़ें हैं जो इंसान को जो है इंसान की आखिरत जो है तबाह करने पर जो है उसको आमादा करती है। जहाँ पर औलाद हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, वहीं पर जो है ये बड़ी आजमाइश भी है। और ये मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए डाला है, ये सिर्फ उनको पालना पोसना, उनको कपड़े पहनाना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इसके लिए नहीं, बल्कि उनकी आखिरत हम लोग संवारें, उनकी सही तरबियत करें, उनकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। ये ज़िम्मेदारी जो है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, और इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत, ये शफ़क़त डाला। वरना हम देखते हैं जानवरों के बच्चे कुछ दिन तक या कुछ महीने तक जो है अपने औलाद की परवरिश करते हैं, उसके बाद में जो है अपने बच्चे और वालिदैन जो है अलग हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान एक अजीम मखलूक ऐसी है जिसमें जो है अल्लाह ताला मरते दम तक जो है औलाद की मोहब्बत जो है उसके दिल में बचा कर रखता है। और औलाद ही ऐसे नेमत है जिनके लिए तमाम दुनिया के नेमतों को इंसान कुर्बान करने के लिए जो है तैयार हो जाता है। जैसे अभी एक तकरीर में बात आई, खुशी के हाल में सब तो याद करते हैं, बुरे वक्त में जो है अल्लाह को याद करना चाहिए, लेकिन इंसान अक्सर अल्लाह को जब भूलता है, वो जब नेमतें हमको हासिल हो, उस वक्त जो है इंसान जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के रास्ते पर लगाना जो है भूल जाता है। शैतान उस जगह पे जो है हमारे ऊपर ज़्यादा वसवसा करता है। तो हमको चाहिए कि जो नेमत औलाद की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमको दिया है, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। माल भी एक अजीम आजमाइश है, लेकिन उसके साथ साथ जो है औलाद जो है सबसे बड़ी आजमाइश है। और हम देखते हैं माल के नुकसान के बारे में जो है इंसान बहुत सोचता है,
माल के नुकसान से क्या होगा, क्या तकलीफ़ें होंगी। लेकिन औलाद को अगर हम सही तरबियत नहीं देंगे तो जो है उसके नुकसानात से जो है हम दुनिया में भी नहीं बच पाएंगे और आखिरत में भी नहीं बच पाएंगे। हम देखते हैं औलाद की अगर सही तरबियत हम लोग करें तो औलाद हमारे लिए दुनिया में भी आंखों के ठंडक बनेंगे और मरने के बाद जो है आखिरत में हमें जन्नत में जाने का, हमारा दर्जा बुलंद होने का जो है ज़रिया भी बनेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं औलाद को अगर हम सही तरबियत करने में पीछे रह जाते हैं तो वही औलाद जो है दुनिया में भी हमारी बेसुकूनी की वजह बनते हैं और आखिरत भी जो है हमारी इस वजह से जो है बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला सूरह काफ में फरमाता है अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये औलाद जो है तुम्हारे लिए दुनिया में ज़ेबाइश है, आराइश है। और इसी तरह अल्लाह ताला फिर सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 में फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद जो है तुम्हारे लिए आजमाइश है। एक तरफ बताया जा रहा है ये दुनिया की जीनत है और साथ साथ में बताया जा रहा है कि ये तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। तो इस आजमाइश के बारे में हमको हर वक्त याद रखना है, वरना हम जो है दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे और हमारे बच्चों को भी जो है इसी रास्ते पर जो है हम डाल देंगे। अक्सर हम जब सोचते हैं औलाद की तरबियत तो हमारे दिमाग में आता है कि बच्चों को कैसे सुधारें, बच्चों को कैसे सीधे रास्ते पर रखें, बच्चों को कैसे ठीक करें। लेकिन इसको जो है हमको उल्टा करके थोड़ा सोचना होगा। औलाद की तरबियत का मतलब है हम माँ बाप के अंदर हम कौन सी ऐसी सिफत पैदा करें जिसकी वजह से औलाद की सही तरबियत जो है हम करने में कामयाब। ये है पेरेंटिंग का मतलब, ये है औलाद की तरबियत का मतलब। जब हमारे अंदर ही वो सिफत ना हो और फिर हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हमारे बच्चे जो है सीधे रास्ते पर रहेंगे, उनकी आखिरत जो है सुधर जाएगी। तो आज के ज़माने पे अगर हम नज़र डालते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है हमारे बच्चों के सामने हैं। अक्सर हम जो है बच्चों को मिसाल देते हैं अपने बचपन की, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम की। हम एक पेन इस्तेमाल किया करते थे, हम चल कर जाते थे, हम फला चीज़ें करते थे। लेकिन आज हम देखेंगे तो खुद हम भी जो है आज वो चीज़ें नहीं कर रहे। तो हम बच्चों को वो एग्ज़ाम्पल देने से वो एग्ज़ाम्पल का कुछ उनके ऊपर असर होने वाला ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है मोबाइल ना इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन हम अपने ऊपर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिन भर हमारा वक्त गुजरता है, हम किसी के गप्पे मारते हुए हमारा दिन गुजरता है, हमारा वक्त फजूल चीज़ों में गुजरता है, तो बच्चे ये चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि ये 7 साल तक का वक्त जो है बच्चे साइलेंट रिकॉर्डर के माने होते हैं, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे माँ बाप। क्योंकि जो हम सिखाते हैं, जो नसीहतें करते हैं, वो उनके दिल में नहीं जाती। 7 साल तक जो है हम जो करते हैं, कभी हमने ये नहीं सिखाया है कि इसको प्लेट बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको रोड बोलते हैं, इसको घर बोलते हैं। जो हम बोलते हैं उसी से बच्चे जो है सीख जाते हैं। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, ये एक साइन है कि बच्चे जो है 7 साल तक जो है साइलेंट ऑब्जर्वर है। जो भी हम कर रहे हैं वो अपने अंदर जो है रिकॉर्ड कर रहा है। 7 साल के बाद में का जो पीरियड होता है, इसमें जो है बच्चों के अंदर मोरल कंपास डेवलप होता है। यानी बच्चे सही गलत में जो है फ़र्क करना और जो है सवालात करना स्टार्ट करता है, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। ये एज में जो है हमको सही जवाब देने आनी चाहिए। सही जवाब देने के लिए हमें भी वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तो हम जो है अपने स्टैंडर्ड को भी बदलें। आज के ज़माने के हिसाब से जो चैलेंजेस हमको नज़र आती है, सोशल मीडिया कि इतना आम हुआ है कि हर बंदा फेसबुक इंस्टाग्राम में जो है इतना वक्त बिताता है, इवन हम माँ बाप भी जो है उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि उसमें जो अच्छाई है सिर्फ उसी के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, एक टाइम लिमिट रख के इस्तेमाल करें, तभी जो है हम वो चीज़ जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। वरना बच्चे भी जो है 1 मिनट के लिए मोबाइल ले लेंगे, लेकिन घंटों जो है शॉर्ट्स और रील्स देख के जो है अपना टाइम जो है बर्बाद करेंगे। और इसी तरह ये टेक एडिक्शन से बाहर आने के लिए जो है बच्चों को हम सपोर्ट करें, हम बच्चों को वक्त दें। हम अगर बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऑब्वियसली वो जो है मोबाइल या टीवी लेकर जो है बैठ जाएंगे। अगर हम वक्त देंगे, हम उनसे बात करेंगे, तो वो जो है हमारे दोस्त बन जाएंगे। ये 14 साल के बाद का उम्र जो है, इसमें जो है हमको ये टीनेज जो है प्रेशियस होता है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे जो है इस वक्त में जो है हमसे चिढ़ते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर वो समझने लगते हैं कि हम जो है डिसीजन ले सकते हैं।
تو اس وقت جو ہے ہم کو ان کے ساتھ دوستوں کے جیسا رہنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آئی کہ بیٹے کو جو ہے قربان کرنا ہے تو انہوں نے جا کر بیٹے سے گفتگو کیا. یہ کمیونیکیشن جو ہے ہم کو بچوں سے ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم جو ہے ہماری چیزیں بچوں پر تھوپے نہ, جو بھی ہے ان کو بھی جو ہے وہ عمر میں جو ان سے جا کے ہم لوگ بات کریں کہ تمہارا کیا ڈیسیجن ہے, تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. اور اکثر جو ہے ہم گھر کے حالات کو جو ہے بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے. بچے بہت سارے چیزیں جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم سے اور ہم جو ہے بچوں کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, لیکن وہ ان کو کبھی ان پر اثر نہیں کرتی. یہ کیوں اثر نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمارے سچویشن کیا ہے یہ ہم کبھی بچوں کے سامنے رکھے نہیں. وہی آپ دیکھو ایک جھونپڑی میں جو بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے وہ جو ہے بہت ذمہ دار بن جاتا ہے, وہ ایک بڑا ڈیسیجن میکر بن جاتا ہے, کیونکہ جو بھی باتیں ہو رہی ہے, جو تکلیفیں ہیں ماں باپ کی, وہ بچہ دیکھتے ہوئے جو ہے بڑا ہو رہا ہے. وہی جہاں 4 کمرے کا گھر ہے, جہاں پر ماں باپ ایک کمرے میں ڈسکشن کرتے ہیں, بچے ایک جگہ ہیں, وہاں پر گھر کے حالات کیا ہے, ماں باپ کی پریشانی کیا ہے, بچوں کو کبھی پتہ نہیں چلتی. اس وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے اندر ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی جو ہے بہت کم رہتی. تو ہم کو چاہیے جو بھی حالات ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی گوا کے ماحول پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے, یہاں پر تو ننگا پن جو ہے بہت عام ہے, اور جو بھی برائیاں ہیں گوا میں بہت پہلے آ جاتی ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا جو سلسلہ انڈیا میں باقی جگہ تو بہت جلدی شروع ہو چکی تھی. 1947 سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے جو ہے یہاں پر کام کیا, بہت سارے تنظیموں نے کام کیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گوا میں جو ہے 1961 کے بعد جو ہے اسلام کی تعلیمات کا پھیلنا جو ہے شروع ہوا. تو یہاں کے بچوں میں جو ہے سیکولر سوچ ہم کو زیادہ ملتی ہے. یہاں کے اسکول کالجز میں بھی جو ہے وہی چیزیں بچے پڑھتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں بچوں سے ڈسکشن نہیں کرتے, اگر ہم قرآن اور حدیث کھول کر دیکھتے ہیں تو ہر چیز بھی جو ہے اس میں صاف صاف بیان کیا گیا. لیکن اگر ہم یہاں کے برائیوں کے بارے میں بچوں کے پاس کھل کر بات نہیں کرتے تو دنیا تو ویسے بھی ان کو جو ہے یہ چیزوں کو صحیح کر کے پیش کر رہا ہے, تو بچے بھی سمجھنے لگیں گے کہ بے پردگی ٹھیک ہے پوری دنیا کر رہی ہے, ہم کیے تو کیا ہے. اکثر ہم یہ سوال بچوں سے سنتے ہیں, نیتوں کے اوپر جو ہے تولا جاتا ہے, تو ہمارا نیت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جنت دے دے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جو ہے جنت میں جانے کے لیے اگر کافی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کیوں محنت کرتے, صحابہ کرام جو ہے اپنی زندگیوں میں اتنے سیکریفائس کیوں کرتے, یہ ہم کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ رمضان آ رہا ہے تو یہ اچھا موقع ہے ہم اپنے اوپر جو ہے نظر ڈالیں, کیا چیزیں ہیں جو ہم میں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جب ہماری کمی ہم لوگ پورا کریں گے تو ہم اسی طرح کی تربیت جو ہے بچوں کے لیے دے سکتے. ہم اپنے آخرت کو سنوارنے کا فکر کریں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اپنے آخرت کا فکر کرو, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے, اس میں جو ہے دیکھیں ہم لوگ کیا کیا چیزیں ہم کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کا مہینہ ہے, قرآن پر تدبر کرنے کا مہینہ ہے. قرآن نازل ہوا اسی لیے تو رمضان کو جو ہے بابرکت قرار دیا گیا ہے. تو قرآن کو دیکھیں, قرآن سے رشتہ جوڑیں, قرآن کو سمجھیں, اس کے مطابق جو ہے اپنے زندگی کو ڈالیں. جب ہم قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو ڈالیں گے تو پھر جو ہے بچے بھی اپنے آپ جو ہے اسی ڈھنگ سے جو ہے چلنا شروع کریں گے. اور یہ دنیا اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم جو ہے سلو پیس پہ اگر چلیں گے تو ہمارے بچے ہاتھ سے جو ہے نکل جائیں گے. اگر ہم دیکھیں گے ہر 10 سال, کچھ سال پہلے کا رپورٹ ہے کہ ہر 10 سال کو جو ہے لیپ ایئر کہا جاتا ہے, جہاں پر کمپلیٹ جنریشن چینج جو ہے ہم کو نظر آتی. فار ایگزامپل بٹن والا موبائل جو ساؤنڈ کرتی تھی, تو آج اگر کوئی دباتے ہیں تو سب لوگ گھوم کر دیکھیں گے کہ کہاں سے آواز آئے. تو سوچو کہ دنیا کتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک بٹن دباتے ہی اے آئی جو ہے ہم کو پورا 1 گھنٹے کا تقریر جو ہے تیار کر کے دے دے گا. تو ہم سوچیں کہ دنیا کتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اگر ہم ماں باپ اگر بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے, توجہ نہیں دیں گے تو یہ دنیا جو ہے بچوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی, اور ہماری کامیابی اپنے بچوں کی کامیابی میں ہے. یہ ہمیشہ یہ بڑی ذمہ داری ہے, یہ ہم ہمیشہ اپنے دماغ میں جو ہے رکھیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے اللہ کی محبت جو ہے بچوں کے اندر ہم لوگ ڈال دیں. اللہ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے, کس لیے لائی, یہ چیز اگر ہم ان کے دل میں مضبوط کریں گے تو یہ جو ہے ایک فاؤنڈیشن کے مانند ہوگا کہ فاؤنڈیشن جب اسٹرانگ ہوگا گھر بھی جو ہے
बिल्डिंग भी जो है मजबूत खड़ा रहेगा। और दुनिया जो बता रही है कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, लेकिन हम अपने बच्चों को इस्लाम समझाएंगे, दुनिया बच्चों को ना समझाएं बल्कि हम समझाएं कि इस्लाम क्या है। जब मुसलमान ये काम करना बंद करेंगे तो फिर बाहर वाले समझाएंगे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम आई 1400 साल पहले, बाकी मजहब आए हज़ारों साल पहले, यही हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चे ये समझने लगते हैं तो ये बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमने कभी बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की। और ये बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि 1400 साल पहले आया हुआ चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जो है आउटडेटेड रहेंगे, हमको जो है बैकवर्ड माना जाएगा, हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। हमको ये बताना है बच्चों को कि क़यामत तक चाहे कितना भी चेंजेस दुनिया में आ जाए, हर मसले का हल जो है कुरान में है, और कुरान ही है जो सोर्स ऑफ गाइडेंस है। कुरान और सुन्नत, इसको अगर काम में रखेंगे हम तो दुनिया में चाहे कुछ भी बिगाड़ आ जाए, हम उस बिगाड़ के कब्जे में जो है नहीं आएंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये इस्लाम की सही पहचान अगर हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे, ये 15 साल तक सही तरबियत अगर हम बच्चों के करेंगे, बाद में दुनिया के कोई भी कोने में हम लोग बच्चों को भेजें, हम बेफिक्र रह सकते हैं कि हमारा बच्चा कभी भटकेगा नहीं। तो ये चीज़ जो है हमको जो डालने का वक्त है, ये पैदाइश से लेकर 15 साल तक का वक्त जो है, ये बहुत ही कीमती वक्त है। ये हीरे को, सोने को तराशने का वक्त है। अगर हम अभी सही तराशेंगे तो वो चमक जो है उनके मरते दम तक जो है बाकी रहेगी। और एक चीज़, बच्चों के अंदर जो भी सलाहियत है, जैसे आज हमने देखा कि बच्चे अपने अपने सलाहियत जो है हमारे सामने पेश किए, तो जो भी सलाहियत है उसको पहचानना, उसको निखारना, ये जो है हमारी जिम्मेदारी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी हम देखते हैं, छोटे से बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम यहूदी लैंग्वेज हिब्रू जो है सीखो, और इसी तरह किसी को कहते हैं कि घुड़सवारी सीखो। तो ये जो सलाहियतें हैं, अलग अलग सलाहियतें जो है हमारे बच्चों के अंदर आज पहचानना और उसको निखारने की जो है ज़रूरत है। तो चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मकतब हो, चाहे वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब मिलकर जब इस काम पर लग जाएंगे तो इस्लाम को जो है हम सही दिशा पे ले जा सकते हैं। वरना जो है हम मॉडर्न इस्लाम को फॉलो करने वाले जो है बनकर रहेंगे। आखिरत का एहसास, आखिरत में जवाबदेही का एहसास, ये हमारे अंदर भी हो कि ये जो अमानत हमारे सुपुर्द अल्लाह ताला ने किया है औलाद की शक्ल में, तो इसकी सही तरबियत अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी सख्ती से जो है पकड़ होगी और मैं जन्नत में नहीं जा पाऊँगी। ये फ़िक्र जो है हमारे अंदर होना। और हम देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत को पूरा हज़रत लुकमान की नसीहत को जो है पूरा दर्ज किया। इसी तरह हम देखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद के कन्वर्सेशन को जो है अल्लाह ताला ने दर्ज किया। मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। जो भी अल्लाह ताला ने कुरान में वाक़यात बयान किए हैं, ये हमारे लिए जो है अल्लाह ताला ने मिसाल दिया है कि देखो किस तरह उन्होंने अपने औलाद के बारे में फ़िक्र की। याकूब अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त था और वो अपने औलाद को बुलाकर ये पूछते हैं कि बोलो मेरे जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे। ये फ़िक्र नहीं था कि बचा हुआ प्रॉपर्टी क्या करेंगे, खाने पीने के लिए क्या करेंगे, साथ में रहेंगे या नहीं, ये फ़िक्र नहीं था, बल्कि ये फ़िक्र था कि क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहोगे या नहीं। यही फ़िक्र जो है हमको अपनी औलाद के बारे में करनी। वरना दुनिया देने में तो जो है हम लोग बच्चों के पीछे लग जाते हैं। हमको ये फ़िक्र रहना है कि हमारे जाने के बाद बच्चे हमारे ईमान पर कायम रहेंगे या नहीं, बच्चों का अखलाक सीधा रहेगा या नहीं। हम जब तक हैं हम नसीहत कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा, ये फ़िक्र हमको अभी करना है, क्योंकि जाने के बाद जो है वो मौका हमको नहीं मिलेगी। और हशर के मैदान में भी जो है हम अपने औलाद का फ़िक्र नहीं करेंगे। तो जो फ़िक्र करना है वो आज दुनिया में ही जो है करना है। और बच्चे जो भी काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करना जो है हमको आना चाहिए। अक्सर हम जो है बच्चों को डांटने वाले, नसीहत करने वाले, गाइड करने वाले यही अपने आप को समझते हैं। बच्चा एक छोटा सा काम भी करे, बाकियों के बच्चों को हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जो है चाहे वो कुछ भी काम करे हम अप्रिशिएट बहुत कम ही करते हैं। अपने बच्चों को भी जो है अप्रिशिएट करना जो है हम सीखें, ये उनके लिए जो है बड़ा मोटिवेशन होता है। और बच्चों के बारे में बड़ा विज़न रखें। हमारा विज़न बच्चों के दुनिया तक महदूद ना हो, बच्चों का आखिरत
संवारे, इसका फिक्र जब हम करेंगे तो उनकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी जो है अच्छा होगा और कामयाबी वहाँ पर जो है उनको नसीब होगी। और जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन गोवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन गोवा तकरीबन 14 साल से जो है गोवा में लगातार वीकेंड क्लासेस चलाते आ रही है और बच्चों के दुनिया के साथ साथ जो है बच्चों के आखिरत को संवारने का काम भी जो है करते आ रही है। जहाँ पर अगर आप उन क्लासेस की किताबें देखेंगे तो उसमें जो है पूरा कुरान में जो चीज़ें बच्चों के इस 15 साल तक जो उनको तदब्बर करनी है, जो चीज़ें उनके अखलाक की पुख्तगी के लिए चाहिए, वो चीज़ों को जो है उसमें डालकर जो है छाँट कर जो है किताबें बनाई गई है और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 70 से ज़्यादा चैप्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो है उनके अंदर जो सलाहियत है उसको जो है निखारने की कोशिश जो है किया जाता है। तो इसी तरह उर्दू और अरबिक भी जो है पढ़ाया जाता है। जिस तरह मकतब एक तरफ से अपनी कोशिश करती है बच्चों को जो है कुरान से अटैचमेंट कराने की, दुआएं सिखाने की और बाकी जो मसनून चीज़ें हैं वो सिखाने की, उसी तरह बीआई जो है लगातार कोशिश कर रही है कि बच्चे जो है दुनिया में भी एक्सेल करें और आखिरत में भी जो है एक्सेल करें। हम सब मिलकर जब ये कोशिश करेंगे तो जो है हम जो है इन बच्चों को जो है आगे जाकर इस्लाम के सही नुमाइंदे जो है बना सकते हैं। तारे ज़मीन पर जो चिल्ड्रंस फेस्टिवल लगातार कई सालों से जो गोवा में होते आ रहा है, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रखा जाता है, जैसे राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए या अलग अलग चीज़ों में जो है बच्चों का टैलेंट को जो है परखा जाता है। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं और उसमें जो बच्चे आकर अपना टैलेंट दिखाते हैं पूरे गोवा से, तो उसमें देखकर जो है हम हैरान हो जाते हैं कि बच्चों के अंदर जो हम सोच भी नहीं सकते उस तरह के टैलेंट। फॉर एग्जांपल लास्ट तारे ज़मीन पर में जो है एक कॉम्पिटिशन रखा गया था वीडियो ब्लॉगिंग का, तो उसमें बच्चों ने इस तरह से वीडियो बनाया जो प्रोफेशनल वीडियो ब्लॉगर्स भी जो है नहीं पेश कर सकते, या प्रोफेशनल ब्लॉगर्स भी जो है नहीं उस तरह का ब्लॉग क्रिएट कर सकते। उस तरह की चीज़ें जो है हमारे सामने आई। हम अपने बच्चों को कम समझते, लेकिन कुछ 300-400 साल पहले अगर हम नज़र डालेंगे तो दुनिया में जो कुछ भी दिया गया मुसलमानों ने उसमें मेजॉरिटी रोल प्ले किया। आज भी हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, उसको बस एक प्लेटफॉर्म देने की, उसको निखारने की ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो है दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी जो है कामयाबी हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो है ये तौफीक दे कि हम इन हीरों को जो है अच्छे से तराशे और उनकी सही तरबियत करें और उनको सही इस्लाम के सही मानों में इस्लाम के नुमाइंदा में। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह साहिबा मिनाज बानू, बहुत ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाला बयान था। बारी है आज के चौथे सवाल की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और तौहीद के पैगंबर थे। उन्होंने अपनी कौम को बूत परस्ती से रोकने की कोशिश की, मगर उनकी कौम और जालिम हुक्मरान नमरूद ने उनकी बात न मानी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिस पर नमरूद ने उन्हें सज़ा देने का फ़ैसला किया। तो सवाल है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने किस चीज़ में डालने का हुक्म दिया? ऑप्शंस चाहिए? आग। माशाल्लाह, सही जवाब है। इसने सवाल दिया एक मतलब हुआ ना, बात किसी और से भी ले सकते हो, समझे ना? तो एक आदमी का एक ही मतलब देगा। बड़ों को भी मौका दो, बड़ों को मौका दो, जो हमारे लोग जहाँ से आए हैं ना उनको, बच्चे प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। बड़ों हाथी उपाते थे, थोड़ा सा फिर टाइम क्या करते हैं? अब बारी है हदीस की। मैं दावत देना चाहूँगा साहिम पटेल को कि वो आके हमें हदीस सुनाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किए हुए बातों को हदीस कहते हैं और हदीस को याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी उम्मत में 40 हदीसें याद कर ली तो उसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मेरी शफ़ाअत में दाखिल फरमाएंगे। हदीस नंबर 1, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्र। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन आसान है। हदीस नंबर 2, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति सलाह। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शना फलैसा मिन्ना। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हमको धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्दिक़। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा सच बात करो। हदीस नंबर 6, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहुरु शत्रुल ईमान। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिन ताबा नुबतन फलैसा मिन्ना। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कोई चीज़ छीन कर ले वो मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तानिबुल गज़ब। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्से से बचो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर साहिब, आपने हमें एक बेहतरीन हदीस से रोशन किया। अल्लाह ताला हमें इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी इल्म से हम सबको फ़ायदा पहुंचाया। अब हम आपको एक बेहतरीन स्किट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आइए हमारे स्टूडेंट्स को तालियां से हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा एक सवाल है, अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाई तो अल्लाह ताला को किसने बनाया? कोई बात नहीं। ये हकीकत में एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हकीकत में है कौन। सर, क्या अल्लाह ताला वही नहीं जिन्होंने सब कुछ पैदा किया और सबसे पहले मौजूद थे? बिल्कुल सही। अल्लाह सुब्हान व तआला अल-अव्वल है, यानी कि सबसे पहले। इसका मतलब है कि उनसे पहले कभी कुछ न था। अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो ये सवाल कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अल्लाह खुद एक ऐसी हस्ती है जो किसी की मखलूक नहीं। सर, क्या आप इसे मज़ीद आसानी के साथ समझा सकते हैं? ठीक है फरा, क्या तुम हमारे लिए एक ऐसा स्क्वायर बना सकती हो जो सर्कल भी हो? सर, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये तो एक स्क्वायर हो सकता है या तो एक सर्कल। बिल्कुल सही, शुक्रिया फरा। अब तो अपनी जगह पर बैठ सकते।
वैसे ही अल्लाह ताला को किसने पैदा किया का सवाल ऐसा है कि किसी को कहना कि एक स्क्वायर शक्ल बनाए जिसका कोई मतलब नहीं बनता। सर, अभी मुझे समझ में आया कि मसला सवाल में ही था। बिल्कुल दुरुस्त, ये सवाल खुद ही गलत है, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया, तो हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि उनको किसने पैदा किया और उनको किसने पैदा किया, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होगा। और अगर ऐसा होता तो ये दुनिया कभी वजूद में नहीं आती। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। हुस्नारा, क्या तुम अगर तुम्हें अपने कज़न के घर रहना हो तो तुम्हें अपने वालिदैन की इजाज़त लेनी होगी? हाँ, मैं अपनी अम्मी से पूछूंगी। बिल्कुल सही। अब फर्ज करो कि तुम्हारे अम्मी को तुम्हारे वालिद से इजाज़त लेनी पड़े और तुम्हारे वालिद को अपने वालिद से इजाज़त लेनी पड़ी, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, तो क्या तुम अपने कज़न के घर जा सकोगी? नहीं, कभी नहीं जा सकती। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम अपने कज़न के घर जा सको? सर, ये तो आसान है। किसी को ऐसा होना चाहिए जो खुद फैसला करे बिना किसी और से पूछे। बिल्कुल सही। वैसे ही दुनिया का वजूद में आने के लिए एक ऐसा मखलूक होना चाहिए जो कभी किसी ने पैदा ना किया हो और जो किसी और पर मुनहसिर ना हो। अगर अल्लाह ताला को भी किसी ने पैदा किया होता तो ये दुनिया कभी वजूद में नहीं आती। लिहाजा इस दुनिया के लिए एक ऐसा खालिक होना ज़रूरी था जो अजीम हो, जो हर चीज़ पर कादिर हो, जो किसी का मोहताज ना हो और जो हर चीज़ पर इक्तिदा रखता हो, और वो अल्लाह है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे स्टूडेंट्स ने अपने बेहतरीन स्किट परफॉर्मेंस से हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी मेहनती और जज्बात से परफॉर्मेंस को यादगार बनाया। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल करे और उन्हें बेहतर कामयाबी दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़िदा नबी थे जो कौम निनवा को अल्लाह की तरफ बुलाने आए। जब उनकी कौम ने इनकार किया तो वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से चले गए। फिर अल्लाह ने उन्हें एक सख्त आजमाइश में डाल दिया। उन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई।